Hello everyone, good morning to all. So this is the lecture number 5 on the JNU Environmental Science MSc level exam from the previous year 2018 paper. I request every subscriber to contact us in this number and watch our videos for the tomorrow's exam. Okay, so tomorrow is the exam. I wish everyone all the best. Okay, and please be calm while giving the exam. Okay, let us discuss the questions. So the first question that we are seeing here is the interaction between the shark and sucker fish is that. Okay, so here the topic that is coming here, it is from the species interactions. Species interactions. Okay, species interactions. Species interactions. So you should learn this species interactions like commensalism, mutualism, parasitism, and competition. These are very important topic from the ecology. Okay, this is a topic from ecology, and you should remember this. Let us discuss this question. Okay. So commensalism is a relationship between the individual of the two species of which one benefited and the other is almost unaffected. Okay, तो भाई दो स्पीसीज का बीच का रिलेशन जिसमें कि एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे रमोराज, ठीक है, अदर नेम ऑफ सकरफिश. ठीक है, रमोराज और अदर नेम ऑफ सकरफिश जो कि यूजुअली ट्रेवल करता है वे अटैचिंग देमसेल्व्स ऑन द लार्ज शार्क. ये देखो कैसे उसके ऊपर सोया हुआ है. ठीक है, ऑन द लार्जर शार्क और फिश एंड फीड्स ऑफ क्रिएचर्स बैक्टीरिया पैरासाइट एंड वेस्ट लाइक ए क्लीनर फिश. ये एक तरीके से एक क्लीनर फिश होता है जो कि उसके बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब खा जाता है. ठीक है, तो सकर फिश का भी बहुत इंपोर्टेंस है और ये कमेंशियलिज्म दिखाता है हमारे बड़े बड़े फिशेस के साथ इंक्लूडिंग द शार्क. ठीक है, लेकिन इन रिटर्न क्या होता है कि शार्क उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है. ठीक है, लाइक अदर होस्ट ऑल्सो डोंट हार्म देम. ठीक है, दे आर ट्रेवलिंग कंपेनियंस, ये उनके साथ ही ट्रेवल करता है. ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा कमेंशियलिज्म. ओके, so this is a kind of commensalism what interaction. So some examples of mutualism, parasitism and competition you should learn. You should learn it from any kind of means. You can google it or you will learn it. Okay, but you should learn this, what are these. Okay, the next question asking the simplest measure of the species diversity is. So it is very simple. Species richness. Okay, how much species richness is there, that is R, is the simplest measure of the biodiversity and simply a count of number of different species in a given area. Okay, so obviously species diversity की बात की है तो different species एक given area में कितने मिलते हैं वही ना आपका species richness होगा. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रीड नहीं करेंगे species evenness, species abundance and species evolutions. These are very also important term. You should learn this. Okay, you should learn it and you should remember these terms also, their meaning also. Okay, this question is from the red data book. Okay, red data book maintains the record of it. Is very easy if you know something about the red data book. Okay, that is the what record of plants and animals which are known to be endangered. Okay, so let us discuss. The Red Data Book is the document by IUCN for listing out the rare and endangered species of the plants, animals, fungi and also a few local species that exist within a state or country. ठीक है, तो IUCN द्वारा निर्मित है. ठीक है, रेयर और endangered species of plants, animals, fungi. ठीक है, इन सब का होता है. ठीक है, और क्या है कि IUCN रेड लिस्ट है. ठीक है, IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज जो है अगर हम बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं
कि एक्सटिंक्ट होता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होता है। एक्सटिंक्ट मतलब जो पूरा ही एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एक्सटिंक्ट हो चुका है या तो किसी वाइल्ड एरियाज में एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती है कि फिर डेंजर्ड होती है, फिर वल्नरेबल होती है, ठीक है। ये सब जो कैटेगरी हैं ये कगार पे है, गायब होने के कगार पे है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। फिर आता है लीस्ट कंसर्न नियर थ्रेटेंड, ठीक है। तो मतलब कंसर्न ही नहीं है क्योंकि ये एबंडेंस में इतने मौजूद हैं कि इनको आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। डाटा डेफिशिएंट भी होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, और नॉट इवैल्यूएटेड, किसी को हमने अभी तक इवैल्यूएट नहीं किया हो, ठीक है। तो आपको ये लिस्ट पता होना चाहिए, IUCN की ये लिस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके कोडिंग के साथ याद करिए ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हो। And this question is repeated 1,000 times, okay. This question is very important because it is coming repeatedly in the exams, okay. ये repeatedly आ रहा है, ठीक है। बात करें lichens can be used as an indicator of, this is very easy. The hardy lichens are always a useful bioindicators of air pollution, especially sulfur dioxide pollution, since they derive their waste and essential nutrients mainly from the atmosphere rather than from soil, ठीक है। तो लाइकेंस जो होता है, ठीक है, लाइकेंस जो होते हैं, ठीक है, उनका न्यूट्रिएंट्स मिलता है एटमॉस्फेयर से भाई। एटमॉस्फेयर देता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा भी अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है, तो रेस्पॉन्स किस में दिखेगा? लाइकेंस में, ठीक है। तो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि आपका किस ऑर्गेनिज्म में रेस्पॉन्स दिखता है ड्यू टू सम क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज में एटमॉस्फेयर भी चेंजेस होगा तो लाइकेंस के कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगे, तो इसमें दिखेगा, सेंसिटिव है ये, ठीक है। ये चीज याद रखना है। ऑल्दो ये क्या है, पॉल्यूशंस के इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशंस के इंडिकेटर्स हैं, ओके। Again, the next question asks, variation in the gene frequency within the population occurring by a chance rather than by natural selection is referred as, okay. So बात करते हैं, although genetic drift increases differences among the population, migration opposes the drift by generally homogenizing the population, okay. अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो इट इंक्रीजेस द डाइवर्जेंस अमंग द पॉपुलेशन, ठीक है, डाइवर्जेंस इंक्लूड कर देता है, ठीक है। माइग्रेशन अपोजेस, ठीक है, माइग्रेशन अपोज करता है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो आपका डाइवर्जेंस अमंग द पॉपुलेशन कराता है, ठीक है। माइग्रेशन क्या करता है? ड्रिफ्ट को अपोज करता है। जेनेटिकली होमोजेनाइजिंग द पॉपुलेशन, ठीक है, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसकी ड्रिफ्टिंग हो रही है तो ये डाइवर्जेंस तो होगा ही, मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक है। अगर माइग्रेशन अगर बोलेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म यहाँ भी पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच गया, तो हर जगह में जाके होमोजेनाइजिंग कर देगा वो, ठीक है। फिर बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, पॉपुलेशन बोटलनेक एंड द फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। तो पॉपुलेशन बोटलनेक इज व्हेन ए पॉपुलेशन साइज बिकम्स वेरी स्मॉल वेरी क्विकली, ठीक है, क्विकली वेरी स्मॉल हो जाता है। दिस इज यूजुअली ड्यू टू द कैटास्ट्रोफिक एनवायरमेंटल इवेंट्स, हंटिंग ए स्पीशीज टू नियर एक्सटिंक्शन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। पॉपुलेशन बोटलनेक याद करना है, फाउंडर इफेक्ट याद करना है भाई, ठीक है। पॉपुलेशन बोटलनेक याद कर लो, क्या होता है पॉपुलेशन जो बोटलनेक है वो होता क्या है, ये चीज आप याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि जो ये क्वेश्चन है, इसने इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आ कहाँ से रहा है, ये फिर आपका आ रहा है इकोलॉजी वाला। तो आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, इकोलॉजी के पोर्शन से आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इकोलॉजी के कुछ बेसिक फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, वो उसमें भी आपको, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पढ़ना है किन टर्म्स के बारे में, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, जेनेटिक लोड के बारे में, जेनेटिक फ्लो के बारे में, इंड्यूस्ड म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे पॉपुलेशन बोटलनेक और फाउंडर इफेक्ट के बारे में भी पढ़ना है। तो अगर हम पॉपुलेशन बोटलनेक तो हम जान लिए कि पॉपुलेशन की साइज जो होती है वेरी स्मॉल हो जाती है क्विकली, लेकिन अगर हम बात करें फाउंडर बोटलनेक की यहाँ पे, ठीक है, फाउंडर इफेक्ट की, तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है भाई, फाउंडर इफेक्ट में आपका जेनेटिक वेरिएशन लॉस होता है जब आपका कोई बड़ा स्पीसीज,
ठीक है। अगर बात करें, ये आपका स्पीसीज है, ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, थोड़ा जेनेटिकली मिक्सिंग है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि आपका यहाँ पे एक नया स्पीसीज बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और साथ ही साथ आपका एक और नया स्पीसीज बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्मॉलर पॉपुलेशन में ब्रेक हो गया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम व्हाट, that's why I am very concerned about this kind of questions which is coming from the genetic variations. Okay, you should remember this. Okay, and the next question they're asking, the depletion was the international treaty for phase out of the substances causing the depletion of the ozone layer signed in the year what? This is the question. Okay, सो इन शॉर्ट अगर बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 operationalizes the United Nations Framework Convention on Climate Change by committing the industrialized countries and economic in transit to limit and reduce the greenhouse gases GHG emissions in accordance with the agreed individual targets. Okay. सो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो काफी फेमस है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल जो है काफी फेमस है, इसके साथ जुड़ी हुई है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो लगातार क्या हुआ है कि जब से ये कॉप बना है, जब से ये कॉप बना है तब से क्योटो प्रोटोकॉल हमेशा इनके एजेंडा में रहा है, ठीक है। मतलब कॉप 1 से लेके आज तक जितने भी कॉप हुए हैं उनमें क्योटो प्रोटोकॉल का जो मेन थीम था ग्रीन हाउस गैसेस का कर्बिंग आउट, वो हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है। तो इस वजह से आप उसके डेट्स भी याद कर लें और इस प्रोटोकॉल को भी याद कर लें, और साथ ही साथ इनमें कितने सिग्नेटरीज हैं वो भी आपको याद करना है, ठीक है। आप सारी चीजों को याद करके रखें क्योंकि ये दो प्रोटोकॉल हैं जो कि बहुत ही फेमस है। एक है क्योटो प्रोटोकॉल, एक है दूसरा मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, इन दोनों को याद करना है। तो ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अगर बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, करंटली उसके शायद 84 की बात करते हैं, 84 सिग्नेटरीज होंगे, ठीक है। बात करते हैं मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल की। तो मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल क्या होता है भाई? मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल कब आया था और ये होता क्या है, ठीक है। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल की बात करें तो मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल था आपका किसके लिए? 1987 में, कर्बिंग आउट दी सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट दी ओजोन लेयर, ठीक है। ये एक लैंडमार्क था किसके लिए? मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन एनवायरनमेंट पे, ठीक है। अब ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODS, ठीक है। तो भाई पता है ओजोन किससे डिस्ट्रक्ट होता है? CFC, HCF, ठीक है। तो ये सब जो है जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उन पे ये प्रोटोकॉल था, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने यूरोपियन एजेंसी के द्वारा ये बनी हुई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है ये कब आया है, ठीक है। ये कब आया था? ये आपका फेमस 16 सितंबर, ठीक है, 1987 पे आया था, ठीक है। जो आपका वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से फेमस है। वर्ल्ड ओजोन डे इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। आप ओजोन डे का थीम भी याद कर लें, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। ओजोन डे का जो थीम है इस बार का, ठीक है, उसको भी याद करना जरूरी है, ठीक है। उसको याद करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि इस बार का ओजोन डे की अगर हम बात करें तो वो क्या है? 35 years of ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये आपका थीम है, तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आपको याद करना है, ठीक है। The next question they're asking, consider the following. Okay, this is very very important question. ये भी आपका एयर पोल्यूशन से है।
London smoke and Los Angeles smokes are also known as. Okay, so it will be answer 1 and 3. ठीक है, reducing smoke and oxidizing smoke होगा, और साथ ही साथ sulfurous smoke and photochemical smoke भी होगा. ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं. ठीक है, कैसा है, क्यों है. तो ये आप देख सकते हैं क्लासिकल स्मोक, जो कि आपका लंदन स्मोक है. ठीक है, क्लासिकल स्मोक को हम लंदन स्मोक बोलते थे. ठीक है, क्लासिकल स्मोक इज ए लंदन स्मोक. लेकिन अगर फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें, जो कि लॉस एंजलिस स्मोक है, ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है. ठीक है, ये आपका मेजर डिफरेंस है, आपको ये चीज पता होना चाहिए. ठीक है, आइए पढ़ते हैं इनके डिफरेंस. ठीक है, तो लंदन स्मोक और क्लासिकल स्मोक. दिस टाइप ऑफ स्मोक इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1952 इन लंदन. इट इन्वॉल्व्स स्मोक एंड फॉग. ठीक है, it is formed due to presence of sulfur dioxide, humidity in the air, which combines to form H2SO4 deposits on the particulates. Therefore London smoke is also known as sulfurous smoke. ठीक है, sulfurous है भाई, वेरी इजी. ठीक है, सल्फरस है. ठीक है, इट इज रिड्यूसिंग इन कैरेक्टर, केमिकली रिड्यूसिंग मिक्सचर से बना हुआ है, तो रिड्यूसिंग स्मोक है. ठीक है, ब्रोंकाइट्स, इरिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स इन लंग्स भी क्रिएट करता है. ठीक है, मंथ ऑफ विंटर पर्टिकुलरली फॉर्मिंग होता है. ठीक है, रिडक्शन इज सिंपली इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, बात करें तो यहाँ पे रिडक्शन किस वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन की वजह से. ठीक है, अगर लॉस एंजलिस स्मोक की बात करें, फोटोकेमिकल स्मोक है भाई, 1943 की कहानी है लॉस एंजलिस की. वर्ड स्मोक जो है यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्मोक यूज हो रहा है एंड फॉग यूज हो रहा है. डज नॉट इन्वॉल्व एनी, इन्वॉल्व नहीं होते थे वर्ड. ठीक है, स्मोक वगैरह. ये कहाँ से फॉर्मेशन होता था, डायरेक्ट फोटोकेमिकल इफेक्ट की वजह से. जो फोटोकेमिकल इफेक्ट की वजह से क्या होता था, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता था, एयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्मिंग द टॉक्सिक केमिकल्स लाइक पैन, ओजोन एटसेट्रा. ठीक है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वाला स्मोक था. ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीडाइजिंग स्मोक था. और ये करता क्या था, ये इरिटेशन क्रिएट करता था आई में. यहाँ पे ब्रोंकाइड इरिटेशन और लंग्स प्रॉब्लम होता था, यहाँ पे आई इरिटेशन होता था. और इट इज फॉर्म्ड इन दी मंथ ऑफ समर ड्यूरिंग द आफ्टरनून, ड्यूरिंग द ब्राइट सनलाइट के टाइम में ये फॉर्मेशन होता था. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था. ठीक है, तो इट इज वेरी क्लियर, यू नो द डिफरेंस नाउ. ओके, अगर डिफरेंस याद है तो आपको बहुत इजी होगा एग्जाम में इन तरीके के क्वेश्चंस को बनाने के लिए. ओके, आई होप ये लेक्चर से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा. इफ यू हैव सम डाउट यू कैन कमेंट मी इन द बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, थैंक यू.